Cartesian vector and how to add those Cartesian vector. Now we are going to start with the topic of position vectors, and then we are going to use this position vector topic in order to write a force vector which is being directed along a line. So ये दो topics हैं जिसकी हम अभी theory cover करेंगे और probably एक या दो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और रिमेनिंग एग्जाम्पल्स हम अपनी कल की क्लास में जो है वो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर रहे होंगे. प्रोबेबली जो लास्ट टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट का वो हम नेक्स्ट वीक जो है वो कवर करेंगे और नेक्स्ट वीक ही हम चैप्टर नंबर 3 भी जो है वो स्टार्ट कर देंगे जो कि हमारा इक्विलिब्रियम से रेलेवेंट है. ओके, सो मूविंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ पोजीशन वेक्टर्स. जस्ट वेट फॉर अ मिनट, लेट मी स्टॉप द कैमरा ताकि वो जो है वो बैंडविड्थ इस तरफ इस्तेमाल ना हो. ओके, सो हम जो है वो अभी पोजीशन वेक्टर्स वाला टॉपिक जिस तरह कर रहे हैं, आई होप स्लाइड विजिबल है ना सबको. तो पोजीशन वेक्टर्स के लिए जब हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर कहते किसको हैं, किसी भी वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर उस वक्त कह सकते हैं जब वो किसी पॉइंट की लोकेशन के लिए या लोकेशन को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो. सो पोजीशन वेक्टर आर इज बेसिकली अ फिक्स वेक्टर which is used to define or locate a point in space relative to some other point. अब इसमें ये जो चीज़ है relative to some other point, इसको थोड़ा सा गौर से देखें. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास एक पॉइंट है which is point P having coordinates of x, y and z, and in order to define the location of this point P आप एक वेक्टर डिफाइन करते हैं जो कि वेक्टर R है. अब ये वेक्टर ओरिजिन से जो है वो रेफरेंस किया जा रहा है या ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है. सो ये पोजीशन वेक्टर तो कहलाएगा, लेकिन वो तमाम चीजें जो ओरिजिन से स्टार्ट होती हैं उनको हम एब्सोल्यूट वेक्टर्स कहते हैं. तो बेसिकली ये जो पोजीशन वेक्टर आर है, it is basically termed as the absolute position vector because it defines the absolute position of point P from the origin. If R extends from the origin of the coordinates O to point P, X, Y, Z, then R can be expressed in terms of its Cartesian notation. अब ये जो position vector है, इसको हम Cartesian notation की form में लिख सकते हैं using coordinates xi, yj and zk, where I, j and k are the unit vectors along the x, y and z axis, and small x, small y and small z are basically the coordinates values of this position or this point P along the x, y and z axis. सो पोजीशन वेक्टर कहता क्या है कि आपको पॉइंट P तक पहुंचने के लिए करना क्या होगा कि यू नीड टू ट्रेवल दिस मच ऑफ अमाउंट अलोंग द x एक्सिस, दिस मच ऑफ अमाउंट अलोंग द y एक्सिस and this much of amount along the z axis. So once you are reaching point P, then you need to travel along x axis, y axis and z axis by this much of amount. So this position vector R basically defines the position of point P, and since this position is being referenced from the origin O, therefore this position vector R is termed as the absolute position vector. Is this thing clear to all of you? Yes, sir. Okay, yes, so now let us expand our vision of this position vector. Let us now consider 2 points, point A and point B, which are being defined in space. Point A is having a coordinates of xa, ya and za as mentioned here in the figure. Point B is having a coordinates of xb, yb and zb as shown in the figure. Now if I ask you to define the position of point A from this origin O, then in a similar fashion जिस तरह पिछली स्लाइड में आपने किया था, आपने एक वेक्टर डिफाइन किया जिसको हमने पोजीशन वेक्टर RA का नाम दिया, and since this vector is being originated from the origin O या reference from the origin O, this position vector is basically termed as the absolute position vector. In a similar fashion, अगर मैं आपसे कहूं कि पॉइंट B की पोजीशन डिफाइन करें फ्रॉम द ओरिजिन, तो आपने एक और वेक्टर डिफाइन किया पोजीशन वेक्टर जिसको हमने RB का नाम दिया, एंड सिंस दिस वेक्टर इज अगेन रेफरेंस फ्रॉम द ओरिजिन O, so it is also termed as the absolute position vector. So both RA and RB are termed as absolute position vectors, which defines the positions of point A and point B being measured from the origin O. Now this third vector, which is being represented here as vector R, I am talking about this particular vector,
इस वेक्टर को हम relative position vector कहते हैं. Why it is called a relative position vector? Because it is not being referenced from the origin, rather it is being referenced from point A to point B. यानी इसकी tail हमने point A पे जो है वो रखी हुई है और head जो है वो point B पे है. So it is the position vector which basically defines the relative position of B with respect to A. इस position vector को हम जो denote करते हैं वो RAB से denote करते हैं. That is the position vector starting from point A towards point B. So ये जो vector R है ये basically RAB के साथ हम denote कर रहे होते हैं. It is basically a relative position vector which defines the relative position of point B with respect to point A. लिखते हैं हम उसको RAB है, यानी start A से हो रहा है और ख़त्म ये B के ऊपर हो रहा है. सो बाय वेक्टर एडिशन, अगर आपने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा है, आपके पास एक वेक्टर इस तरह है, दूसरा वेक्टर इस तरह है और तीसरा वेक्टर इस तरह आ रहा है. सो बाय वेक्टर अलजेब्रा यू कैन राइट आर ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर, यानी दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर शुड बी इक्वल टू this particular vector. So we can write RA plus RAB should be equal to RB, or we can also write this RAB to be equal to RA vector minus RB vector. यानी इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे तो नेगेटिव साइन जो है वो इसका आ जाएगा. So just a minute. So हम अगर इसी इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड करें and we are going to rewrite this equation, आपके पास RA plus R should be equal to RB है. So we can write R vector, जिसको हमने यहाँ RAB कहा है, it is going to be RB minus RA. So B के कोऑर्डिनेट्स में से मैं A के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये RAB वेक्टर आ जाएगा. So if whenever you are asked to find out this relative position vector, it is going to be RB minus RA. That is, आप जो भी x y z कोऑर्डिनेट्स वेक्टर B के हैं या पॉइंट B के हैं, इसको A में से जो A के कोऑर्डिनेट्स को उसमें से माइनस कर दूंगा तो मुझे RAB पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ठीक है. तो जब आपको किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान पोजीशन वेक्टर फाइंड करने का कहा जाए, उसका तरीका क्या होता है कि आप उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स, और फिर अगर आपने आर ए बी फाइंड करना है तो बी में से ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर लें. अगर आपने आर बी ए फाइंड करना है तो फिर आप इसका अकॉर्डिंगली रिवर्स कर देंगे, यानी आप फिर ए में से बी के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देंगे. इज दिस पॉइंट, आई होप कि दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes sir. Okay, now how you are going to use this position vector in order to define a force which is directed along any line. In other words, आप इस पोजीशन वेक्टर को इस्तेमाल करते हुए किसी भी फोर्स को उसके कार्टेशियन कंपोनेंट्स में, कार्टेशियन नोटेशन में जो है वो लिख सकते हैं. कैसे? थोड़ा सा गौर से इस फिगर को देखें. इस फिगर में आपके पास एक फोर्स है जो एक्ट कर रही है इन दिस लाइन ए बी. आपके पास अगर ए के कोऑर्डिनेट्स नोन है, आपके पास अगर बी के कोऑर्डिनेट्स नोन है, तो यू कैन राइट द पोजीशन वेक्टर आर ए बी यूजिंग द सेम नोटेशन जो हमने इससे पहले पिछली स्लाइड पे देखी थी. दैट इज एक्स बी माइनस एक्स ए आई प्लस वाई बी माइनस वाई ए जे प्लस जेड बी माइनस जेड ए के. तो इस तरीके से आपके पास ये पोजीशन वेक्टर आ जाएगा विच इज बीइंग डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स पॉइंट बी. आप फोर्स को कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं इस फोर्स का मैग्नीट्यूड से 300 न्यूटन है, आपको इसकी कार्टेशियन नोटेशन चाहिए आई जे के की फॉर्म में. तो उसका तरीका क्या होगा कि जब आपके पास ये पोजीशन वेक्टर आर ए बी आ गया, आप इस ए बी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लेंगे. अब किसी भी डायरेक्शन में अगर आपने यूनिट वेक्टर डिफाइन करना हो, उसका क्या तरीका होता है? सर वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड. So vector over its magnitude, it means कि मैं अगर आर ए बी को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दूं तो मुझे एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा जो कि इस ए बी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. ऐसा ही है? यस सर. Okay, so if I need to write this 300 Newton force in terms of Cartesian notation, what should I do? ये मैग्नीट्यूड है उस फोर्स का. डायरेक्शन मुझे पता चल गया है कि इसका डायरेक्शन जो है वो ए बी के अलोंग है. तो ए बी के अलोंग यूनिट वेक्टर आपके पास क्या आता है? जी मेरी आवाज आ रही है सब तक? Yes sir. यस सर.
ठीक है, तो अगर आपने Yes, sir, आ रही है न्यूटन फोर्स को कार्टेशियन नोटेशन में लिखना है तो सबसे पहले आपने किया क्या कि आपने एक पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान डिफाइन किया जिसको आपने आर ए बी का नाम दिया। उसके बाद आपने इस पोजीशन वेक्टर की मदद से यूनिट वेक्टर निकाला जो कि ए से बी तक के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। आप उसके बाद फोर्स को कार्टेशियन नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो सिंपली आप उस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को यूनिट वेक्टर यूएबी से स्केलरली मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये फोर्स कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन की फॉर्म में मिल जाएगी। जब जब आपको किसी भी फोर्स को कार्टेशियन नोटेशन में लिखना हो तो आप इस पोजीशन वेक्टर और उसके बाद यूनिट वेक्टर की मदद से उसको कार्टेशियन नोटेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इज द टोटल टॉपिक। एनीथिंग व्हिच यू वांट टू आस्क रिगार्डिंग दिस टॉपिक? No, sir. ओके, सो आई होप के टॉपिक आसान सही है। सिर्फ इसमें आपको ये बताया गया है कि जब भी जनरली तो इससे पहले हमने फोर्स को कार्टेशियन नोटेशन में लिखने के लिए क्या चीज इस्तेमाल की है, कुछ रिवाइज कर सकते हैं आप? हम अब तक कैसे फोर्स को कार्टेशियन नोटेशन में लिखते रहे हैं? सर एफ ऑफ एक्स आई प्लस एफ ऑफ वाई जे प्लस एफ ऑफ जी के, और उसमें सर नहीं, तो एफ ऑफ एक्स कैसे फाइंड करते थे? इससे पहले तक हमें कोऑर्डिनेट एंगल्स गिवन होते थे, अल्फा बीटा गामा, Yes. ऐसे ही है। अल्फा बीटा गामा। यस सर, एफ कॉस तो अल्फा। ये एक ऑल्टरनेट मेथड है। अगर आपको अल्फा बीटा गामा नहीं गिवन लेकिन आपको ये पता है कि फोर्स किसी लाइन के अलोंग एक्ट कर रही है और उस लाइन के कोई से दो पॉइंट्स आपको नोन है तो आप जो है वो पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर की मदद से उस फोर्स को कार्टेशियन नोटेशन में लिख सकते हैं विदाउट नोइंग द अल्फा बीटा एंड गामा। सो दिस इज एन ऑल्टरनेट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ फोर्स इन टर्म्स ऑफ इट्स कार्टेशियन नोटेशन without using those without using those coordinate direction angles alpha, beta and gamma. Is it clear to all of you now कि इस टॉपिक का मकसद क्या है? यस सर। चलें, अगर आपको ये क्लियर है तो अभी हम इससे रेलिवेंट सिंपली दो एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद क्योंकि दूसरी क्लास को भी 2 घंटे वाले लेक्चर में इतना ही कराया तो आपकी क्लास भी प्रोबेबली थोड़ा सा जल्दी हम खत्म कर देंगे और आपको अगली क्लास से पहले ब्रेक थोड़ी सी लंबी जो है वो मिल जाएगी। ओके, स्टार्टिंग विद अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम विच इज एग्जांपल 2-12 जिसमें आपके पास एक रबर बैंड लगा हुआ है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी। The coordinates of point A and point B are known to you. You are being asked to determine the length of the vector which is between point A and point B, as well as what is going to be the direction of that vector if it is starting from point A towards point B. So we are basically talking about this position vector which is starting from point A and its head is being placed on point B. We need to write this vector, उसका magnitude find out कर लेंगे और उसका direction हम unit vector की मदद से भी बता सकते हैं और अगर चाहें तो उस unit vector के बाद उसका alpha, beta, gamma भी जो है वो निकाल सकते हैं। But the very important thing in writing this position vector is, first of all, we need to find out the coordinates of point A as well as coordinates of point B. So if we take a look at coordinates of point A, पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए इस ओरिजिन से हमें एक्स डायरेक्शन में इतना ट्रेवल करना पड़ेगा अलोंग द एक्स एक्सिस और हमें जी डायरेक्शन में इतना ट्रेवल करना होगा अलोंग द नेगेटिव जी एक्सिस। ऐसे ही है? यस सर। ओके, सो व्हाट शुड बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एज पर आवर डिस्कशन? x coordinate कितना नजर आ रहा है? 1 0 -3. So the x coordinate is being represented here by this unit. So 1 आपके पास x coordinate है, चूंकि y direction में हम travel नहीं कर रहे, so the y coordinate is going to be 0. As far as the z coordinate is concerned, since we are traveling 3 units towards the negative z axis, so the z coordinate is going to be -3. So the coordinates are 1 0 and -3. Is it clear to all of you? किसी को point A के coordinates में कोई doubt? No sir. Okay, now looking at the coordinates of point B, in order to travel from the origin to point B, we are going to travel this much of amount along the y-axis, this much of amount along the negative x-axis, and this much of amount along the positive z-axis. So overall, the dimensions are given to you. What should be the coordinates of point B?
सर ये ए में जीरो किसका है? ए में जीरो क्या मिडिल वाला कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर y y एक्सिस के अलोंग. So from point O to point A you are traveling in this direction and this direction. ये दो डायरेक्शन कौन से बने? सर x and z. x and z. So y डायरेक्शन में तो आप ट्रेवल ही नहीं कर रहे. इट मींस कि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है. ओके सर. ठीक है. थैंक यू Okay. सर. Coming to point B, can you identify the XYZ coordinates of point B now? जो मैंने Minus ग्रीन से two. शो किए हैं. -2, 2, 3. -2, 2, 3. -2 is the x coordinate since we are traveling towards the negative x-axis. 2 is the y coordinate 2. since we are traveling towards the positive 3. y-axis, and 3 is the z coordinate since we are traveling towards the positive z-axis. So आपके पास -2, 2 और 3 जो है वो x, y, z coordinates आ गए point A के, point B के, और A का 1, 0, -3 आए थे. Any query regarding these coordinates values? Any of these coordinates values? No, sir. Okay, so we need to write this vector RAB, which is starting from point A, ending at point B. So what are going to be the coordinate values of RAB? हम B में से A के coordinates को minus करेंगे, ऐसे ही है? Yes, sir. Yes. RB minus Minus RA. So -2, -1, I plus 2 minus 0, J plus 3 3 plus minus 3, K. ऐसे ही है? yes sir. So it would become -3i plus 2j plus 6k. So this vector RAB is being written in Cartesian notation as -3i plus 2j plus 6k. I hope के ये वेक्टर आप सबको क्लियर है RAB. Yes, sir. What should be the magnitude of this vector? Sir, -3 square plus 2 square plus 6 का square. 6 square whole under root, so it would give us 7 meter. जी जी कोई पूछना चाह रहे हैं? ये उसका माइक ओके, सो आपने RAB जो है वो डिटरमिन कर लिया, उसका मैग्नीट्यूड डिटरमिन कर लिया. कैन यू नाउ डिटरमिन यूनिट वेक्टर UAB? Yes, sir. Sir, So -3 -3 over plus 7i plus 2 over 7j plus 6 over 7k. ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया which represents the direction of AB. Okay, can you find out alpha, beta and gamma which this position vector is making? इसके डायरेक्शनल कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं अगर करना चाहें. अदरवाइज यूनिट वेक्टर भी काफी है इसके डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि डायरेक्शनल कोसाइंस भी फाइंड करें तो कैसे करेंगे? सर cos inverse alpha is equal to cos inverse -3 over 7. Similarly, cos inverse 2 over 7 and cos inverse 6 over 7. ठीक है? So those angles would comes out to be 115, 73.4 and 31.0 degrees. Clear है सबको? Yes, sir. चलें थोड़ा सा स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम देखते हैं. दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट प्रॉब्लम. जिस तरह मैंने कहा था आज लेक्चर जल्दी खत्म हो जाएगा, ऑल्दो टाइम 10:30 तक है, लेकिन चूंकि दूसरी क्लास को भी इसी पॉइंट पे हमने खत्म की है तो आपको भी अराउंड 10:07-8 पे हम खत्म कर देंगे. So this is example 2-13 in which a man which is being shown to you is pulling a cord which is between points A and point B. So point A और point B के दरमियान एक cord है जिसको ये बंदा जो है वो पुल कर रहे हैं with a force of 70 pounds. So he is pulling this cord with a force of 70 pounds. We need to represent this force in terms of Cartesian vector notation, and we need to find out its direction as well using directional cosines alpha, beta and gamma. So force आपको known है, आपसे कहा जा रहा है कि इस force को Cartesian notation में लिख दें. You know that this force is being acting in a direction along AB. So अगर किसी तरह हम ये यूनिट हम वेक्टर फाइंड कर लें RAB और उस वेक्टर की मदद से यूनिट वेक्टर UAB फाइंड कर लें,
तो हम 70 को उस यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में इस फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए ज़रूरी है कि हमें पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स जो है वो पता हो फ्रॉम द ओरिजिन, जो कि आपका ये ओरिजिन गिवन है। सो स्टार्टिंग विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, व्हाट शुड बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए? 0, 0 और 30. Yes, Since sir. in order to reach point A from origin, we only need to travel along the z-axis in this particular direction 30 feet. So आपके पास जो coordinates आ रहे हैं वो 0x, 0y और 30 जो है वो z coordinate आ गया। I hope कि ये चीज़ हर एक को clear है। Yes, sir. Clear. ठीक है? Yes, sir. Okay. So now coming to the coordinates of point B, in order to reach point B, we are going to travel this much of amount along the positive z-axis, this much of amount along the negative y-axis, and this much of amount along the positive x-axis. So, as per our this discussion, what should be the coordinates of point B? 12 12 minus 8 minus or 12. 8, 6. Minus 8. 6. So 12 minus 8 6. and 6. So these are the x, y, and z coordinates of point B. So once you are being once you have known these coordinates, what should be this vector AB? Can you write this vector RAB? Yes, sir. B में से A के Sir, coordinates को minus करें, so 12i minus 8 minus 8j minus 24. minus 24k. So this is going to be the position vector which is being directed from point A to point B, जिसको हमने position vector RAB का नाम दिया है। Okay, RAB आपके पास आ गया था। What should be the magnitude of RAB? (12 square plus 8 square plus 24 square whole and root). 28. So 28 feet आपके पास इसका magnitude आ गया है। So once you have got RAB and its magnitude, can you find unit vector UAB? So the unit vector would be 12 over 28i minus 8 over 28j minus 24 over 28k. ठीक है? यहाँ तक समझ आ गई है रेक को? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so next step में आपने इस force को लिखना है in terms of Cartesian notation. So in order to write this force in terms of Cartesian notation, the magnitude of this force is given to us as 70 pounds. We are going to multiply unit vector UAB with this force. Scalar multiplication हमने करनी है. So this will give you the force to be equal to 30i minus 20j minus 60k. Clear है? आपने स्केलर मल्टीप्लाई कर लिया F को UAB के साथ. Yes, sir. Clear. Okay, so once you have found this force, then alpha, beta, and gamma can also be determined using cos inverse 30 over 70. इसी तरह cos inverse minus 20 over 70, cos inverse minus 60 over 70. इससे आप alpha, beta, gamma find कर सकते हैं. कर लेंगे? सर ऊपर वाला हम यूज नहीं करेंगे यूनिट वेक्टर? देखें, दोनों तरीके कर सकते हैं. आप देखें, जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है वही फोर्स का डायरेक्शन आया है ना, बिकॉज स्केलर आपने मल्टीप्लाई किया है. तो आइदर यू कैन यूज दीज थ्री थिंग्स और यू कैन यूज 30 over 70, 20 over 70 और minus 60 over 70. दोनों में से किसी को भी इस्तेमाल कर लें. यू आर गोइंग टू गेट द सेम अल्फा, बीटा एंड गामा. क्योंकि सर रेशियो सेम आएगी ना, इसलिए रेशियो सेम होगी ना. ठीक है? यस सर. ओके, सो विद दिस चूंकि बाकी सेक्शंस को भी हमने यहीं तक कराया है, ऑल्दो अभी आपके 25 के करीब मिनट्स बचे हैं, 22 मिनट्स बचे हैं, बट वी आर गोइंग टू स्टॉप एट दिस पॉइंट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर, यू कैन आस्क नाउ. इफ नॉट, मैं फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ.